بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم آج کا ریویژن کر رہے ہیں، تو کل ہم نے اسماء مرفوعہ مکمل کر لیے تھے۔ آج انشاءاللہ اسماء منصوبہ میں سے پہلے 8، جن میں فاعل خمسہ، حال، تمیز اور مستثنیٰ ہیں، یہ انشاءاللہ آج ہم اس کو سنیں گے۔ جی حمنا ضیاء، آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اسماء منصوبہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ پہلے تو ان ان کی نمبرنگ بتا دیں کہ ہیں کون کون سے۔ اسماء منصوبہ 12 ہیں۔ جی، مفعول به، مفعول مطلق، مطلق، اس کو مفعول مفعول مطلق کہتے ہیں، مطلق نہیں، مطلق۔ مفعول مطلق، ہاں، مفعول لہو، مفعول معہ، اور جو ہے حال، تمیز، مفعول فی ہی ایک مست- مفعول رہ گیا ہے، پہلے 5 جی، مفعول پورے کر لیں۔ جی، مفعول فی ہی، مفعول فیہ، جی مفعول فیہ، حال، تمیز، مستثنی، مستثنی، اور حروف مشبہ بالفعل کے اسم، افعال ناقصہ کی خبر، حروف مشبہ بلیسا کا کی خبر، اور جو ہے لائے نفی جنس کا اسم۔ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ تو سب سے پہلے ہے مفعول بہی۔ مفعول بہی کس کو کہتے ہیں؟ مفعول بھی وہ اسم مفعول ہے جس پر فاعل کا فعل اثباتاً یا نفاً واقع ہو۔ مثال کے طور پر وَقَتَلَ داؤد جالوتا۔ اس میں جو جالوتا ہے وہ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی کی 2 اقسام ہے، اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر۔ اس میں ظاہر ہے جیسے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس میں جو صلاۃ ہے وہ اس میں ظاہر ہے، اور اس میں ضمیر جو ہے الہاکم التکاثر، اس میں جو کم ہے وہ ضمیر ہے مفعول کی، اور ایاک نعبد، اس میں ایاک کا جو ہے وہ مفعول وہ ضمیر ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ کیا ایک فعل کے ایک سے زائد مفعول بہی آ سکتے ہیں؟ جی سر، ایک فعل کے ایک سے زائد مفعول بھی آ سکتے ہیں، جیسے وَأَتَيْنَا وَلَقَدْ إِبْرَاهِيمَ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ۔ رش رشدہ، ہاں، اس میں جو ابراہیم اور رشدہ ہے، یہ 2 مفعول فی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، 2 بھی آ سکتے ہیں، 3 بھی آ سکتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے مونا نعیم، آپ بتائیں جملے میں مفعول بہی کا مقام کیا ہے؟ ترتیب میں مفعول بہی کہاں ہوتا ہے؟ سر نارملی جو ہے وہ اس میں فائل کے بعد ہوتا ہے، پہلے فیل فائل اور اس کے بعد ہوتا ہے، لیکن مفعول، کچھ صورتیں ایسی ہیں۔ جی، جی جیسے اس کی مثال اگر دوں تو مثال ہے جیسے وَقَاتَلَ داؤد جالوتا، تو اس میں جو داؤد ہے وہ فائل ہے اور جالوت جو ہے مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں فائل کو مقدم کیا جاتا ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں مفعول بھی کو بھی مقدم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ فاعل کی وجوبی تقدیم والی صورتیں بیان کر دیں کہ فاعل کو کب مقدم کرنا واجب ہے۔ جی سر، جب فاعل اور مفعول بھی جو ہیں ان دونوں میں ہی اسم مقصور ہوتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا علامہ موسیٰ عیسیٰ، کہ موسیٰ نے جو ہے وہ عیسیٰ کو تعلیم دی، تو اس میں دونوں میں اسم مقصور تھا، یا پھر یہ ہے کہ وہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہوں، ٹھیک، تو بھی جو ہے اس میں ہم فاعل کو مقدم کریں گے۔ اور اسی طرح سے جب فاعل جو ہوتا ہے وہ ضمیر متصل ہو اور مفعول بھی جو ہے وہ اسم ظاہر ہو۔ اس کی مثال جیسے انی دعوتو قومی ہے، تو اس میں جو ہے دعوتو جو ہے یہ اس میں مطلب وہ ضمیر متصل ہے، تو اس کی وجہ سے یہ یہاں پہ فاعل مقدم ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ایک تھا جو، ایک سیکنڈ، ہاں جب مطلب فاعل اور مفعول دونوں ضمیر ہوں تو ضمیر متصل ہوں تو بھی فاعل کو مقدم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی سر، جیسے، اور یہ تھا جی سر جیسے اکرمتہ، ٹھیک ہے، اس میں جو تا کی ضمیر ہے وہ جو ہے فاعل ہے، تا جو مطلب اس میں جی
जी। اور اسی طرح سے سر جب یہ الا اور انما کے ساتھ مفعول بھی کا حصر مقصود ہو جی تو تبھی فائل کو جو ہے وہ مقدم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک جی۔ آگے ڈاکٹر فیصل مجید صاحب آپ بتائیے، مفعول بھی کی وجوبی تقدیم کی کون سی صورتیں ہیں؟ جی شیخ صاحب، مفعول بئی کی مفعول بئی کی آپ کہہ رہے ہیں جی شیخ جی، صاحب؟ یعنی جی مفعول کب بئی مفعول بھی کو مقدم کرنا واجب ہے؟ جب سر یہ جو مطلب ہے نا اس کی طرف لوٹنے والی جو ضمیر ہے وہ فائل کے ساتھ ملی ہو تو، ٹھیک ہے، جیسے؟ جیسے جیسے اذا ابتلا ابراہیم ربہ، ٹھیک ہے، اور دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ جب مفعول بھی ضمیر متصل اور فاعل اس میں ظاہر ہو، ٹھیک جیسے من بعد ما جاءتهم البینہ، ٹھیک اور اس کے علاوہ تیسری صورت یہ ہے کہ الا اور انا ما کے ساتھ فاعل کا حصر مقصود جب ہو، جی جیسے ما نصرا حامدن الا خالدن، ٹھیک، یہ اس میں مطلب یہ ہے۔ چلیں جی ماشاء اللہ۔ جی آگے ہمنا آپ ہی بتائیے، مفعول مطلق کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کر دیں بس۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل جو مانن یا لفظاً فعل کے موافق ہوتا ہے، اور فعل کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، بیان نو کے لیے یا بیان عدد کے لیے آتا ہے، جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اس میں جو تکلیم ہے وہ ہے فعل مطلق، اور فعل مطلق کی وجہ مفعول مطلق، تسمیہ فعل مطلق ہے، مفعول مطلق۔ مفعول مطلق، مفعول مطلق کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں بھی ہی، فی ہی، ماہو اور لاہو کی قید نہیں ہوتی، اور اس کو لانے کا مقصد بتا دیں؟ ہاں نہیں وہ، جی مونا آپ بتا دیں مفعول مطلق لانے کے مقاصد کیا ہیں؟ جی سر، اس کے تین مقاصد ہوتے ہیں، تاکید کے لیے بھی آتا ہے اور بیان نو کے لیے بھی آتا ہے اور بیان عدد کے لیے بھی آتا ہے۔ ہاں اس کی مثالیں بھی دے دیں۔ جی سر، جی سر، جیسے اگر تاکید پیدا کرنی ہو تو وہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو اس میں جو ہے وہ کلام کے اوپر جو ہے وہ مطلب اس پہ تاکید پیدا کرنے کے لیے جو ہے یہ کلمہ سے پھر تکلیمہ کہا گیا ہے۔ اور صحیح اسی طرح سے اگر بیان نو کہیں گے تو اس میں یہ ہے کہ اس کی کیفیت اور حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک تو جیسے اس میں ہے جلستو جلستن، جلست المتعلم، کہ میں متعلم کے جو ہے اس کے سیکھنے کی طرح بیٹھا، تو اس میں جو ہے جلستن جو ہے وہ بیان نو کے لیے ہے، اس کی کنڈیشن بیان کرنے کے لیے۔ اور تیسرا جو ہے اس میں بیان عدد ہے، وہ کسی فعل کے واقع ہونے کی لیے آتا ہے، اس کی مطلب تعداد بتانے کے لیے، جیسے مطلب اس میں جلستو جلستن ہے یا جلستینی ہے یہ یا جلسہ نہیں آئے جلساتی گا، ہے۔ جلسہ آئے گا۔ جی سوری سر، جی جلستن، جلستین اور جلساتن جو ہے وہ مطلب اس میں کوئی بھی اس کے ساتھ اگر ہم لگا لیں تو یہ اس کی عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک جی۔ ڈاکٹر فیصل مجید صاحب آپ بتائیے، نائب مفعول مطلق کون کون سے اسماء ہیں؟ جی شیخ صاحب، یہ نائب مفعول مطلق وہ اسماء ہوتے ہیں جو فعل کا مصدر تو نہیں ہوتے، جی مگر حکم میں مصدر یعنی مفعول مطلق کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے اس میں مصدر کی جگہ اگر اس میں مصدر کا ذکر کیا جائے، مصدر صحیح، کی جگہ پہ اگر اس میں مصدر کا ذکر کیا جائے، جی تو اس کی مثال اتیتو کا عطاءن، ہاں، آتیتک کا عطاء، جی اتیتو کا عطاءن، ٹھیک ہے، تو دوسرا مطلب جو ہے نا یہ ایک صفت وہ اسم جو مذکورہ فعل کے مصدر کی صفت پر واقع ہو، جی وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، تو اس میں مطلب جناب تیسری جو ہے کہ اس میں اعلیٰ مصدر کی جگہ پہ مطلب جناب وہ اس میں اعلیٰ ذکر کیا گیا ہے، صحیح، جیسے ضربتو صوتن، ٹھیک تو یہ مطلب جو ہے نا جی ہے۔ اور عدد عدد کے لیے مطلب جو ہے نا اس میں عدد مصدر کی جگہ کوئی اس میں عدد جب ذکر کیا جائے، جی جیسے فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، ٹھیک ہے۔ جی لفظ کل یا بعض فعل کے مصدر کی طرح مضاف ہو۔ ہاں، جب کل یا بعض فعل کے مصدر کی طرف مطلب جو ہے نا مضاف ہو،
जी। जैसे फला तमीलु मैलन कुल्लल कुल मैली, अलमैल फला तमीलु कुल अलमैल। कुल्लल मैली। हाँ, एक बाकी रह गया और है, इसमें और इशारा। इसमें अशारा, इसमें जी। इशारा, यानी कि मस्दर की जगह वो इसमें अशारा जब जिक्र किया जाए, जी। जैसे ज़रबतहु हाज़ा ज़रबा। हाज़ा ज़र्ब। हाँ। चलें ठीक है, माशाल्लाह जी। आगे। हाँ, हमना जिया, आप ही बताइए, मफूल फी की तारीफ आप कर दें बस। मफूल फी वो इसम है जो बातकदीर फी मंसूब इस्तेमाल होता है, और ये फेल के वकू या वक़्त बताने के लिए आता है। जैसे अल यौमा उहिल्ला लकुम फेल के तय्यिब। वकू की जगह या वक़्त। फेल के वकू की जगह या वक़्त बताने के लिए होता है। जैसे अल यौमा उहिल्ला लकुम तय्यिबातु, इसमें जो अल यौमा है वो मफूल फी है। और चलें जी ठीक है सर। जी। आगे मोना, आप बताएं, मफूल फी की कितनी अकसाम है? जी सर, मफूल फी जो है वो ज़र्फ भी होता है। ज़र्फ की दो इकसाम होती हैं, या मफूल फी की दो इकसाम है, ज़र्फ ज़मा है और ज़र्फ मका है। ठीक है। ज़र्फ ज़मा वो होता है जो किसी मतलब फेल के वाक़े होने का वक्त बताता है। तो उसमें जैसे सुमतु यौमल खमीसी, तो इसमें जो यौमा है ये ज़र्फ ज़मा है। ठीक और है। ज़र्फ मकाम वो होता है जो किसी फेल के वाक़े होने की जगह के बारे में बताता है, जी। जैसे कुमतु अमामा का। और इस तरह से जो है इसमें हर एक की जो है वो दो आगे मिसालें भी होती हैं। और ठीक जो ज़र्फ़ ज़मान है सर, वो महदूद और गैर महदूद दोनों मतलब दोनों तरह से आता है। और महदूद वो होता है जिसमें उसकी कोई मतलब वक्त वगैरह के बारे में उसकी मतलब हद बंदी की गई हो, जैसे मतलब यौम जुमातु, और इसी तरह से रमजान या शबान, ये उसकी मिसालें हैं। जी। और ज़र्फ़े जो ज़मा गैर महदूद है उसमें उसकी कोई मतलब हद बंदी नहीं होती, जैसे मतलब वक्त है, वक्त के कहा जाए, दहरुन कहा जाए, जमानुन बोला जाए, ठीक इस है। तरह से। और सर जो ज़रफ़े मकान है वो भी इसी तरह से महदूद इसका और हुक्म गैर बयान कर महदूद। दें, ज़र्फ़ ज़मान महदूद या गैर महदूद का। जी सर, सर ये मंसूब इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। और इसमें फ़ी क़ियासन मुक़द्दर होता है। जी सर। जी। और इसमें जो है आगे ज़रफ़े मकान है वो भी इस तरह से दो होते हैं, महदूद और गैर महदूद। और जो महदूद होते हैं उसमें वो है जिसकी जगह जो है उसके बारे में कोई मतलब हद बंदी कर दी गई हो या मुतय्यन कर दिया गया हो, जैसे अल मस्जिद अल गुरफतु। जी। और इस तरह से जो ज़रफ़े मकान है वो जो गैर महदूद होगा उसकी आगे से फिर तीन किस्में हैं। जी। और उसमें सर जो एक था सर एक मीलों वगैरह के नाम थे, थोड़ा सा भूल गई हूँ। नहीं, और महीनों जो मतलब महीनों महीनों के नहीं नहीं थे। मील, हाँ, नहीं अस्माए मील सर जिहाते मील। सित्ता। जी सर, जी जी, अस्माए जहाते सिता वो होते हैं जो जैसे अमामुन खलफुन वगैरह जी। इस्तेमाल होते हैं। और जो सर एक होते हैं ना जो मेजरमेंट्स के लिए यूज होते हैं, मील फरसख वगैरह। जी। जी। सर। हाँ। और तीसरा था जो तीसरा वो था अस्माए क्या बोले। ज़ुरूफ जो अपने आमिल के मस्दर से मुश्तक हों। जी ठीक है सर, जैसे हमने वो पीछे पढ़ा था उसमें नहीं याद आया सर अदद, सॉरी। जैसे अदद में या कैफियत वगैरह होती है ना, जैसे जलस्तु मजलिस ज़ैद, मैं जैद की जगह जी पे सर। बैठा। चले ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है। बारकल्लाहु फीक जी। आगे डॉक्टर फैसल मजीद साहब, आप बताइए, मफूल लहू की क्या तारीफ है? मफूल लहू। जी जी शेख सर, मफूल लहू वो मस्दर होता है जो माकबल के सबब पर दलालत करता है, और वो वक्त और फाइल में अपने आमिल के साथ शरीक हो जी। ठीक है। इसकी मतलब जो है ना, ला तक़तुलू औलादकुम खशियता इमलाकी। ठीक है। जी। और इसकी मफूल शराइत लहू क्या है, मस्तर के मफूल लहू बनने की शराइत क्या है? इसके मफूल लहू बनने की शराइत ये है कि वो मस्दर माकबल फेल का सबब हो, ठीक है। फिर वो फेल और मस्दर का फाइल एक हो, दोनों का, फेल का और मस्दर का। ठीक। फिर फेल और मस्दर का जमाना भी एक होना चाहिए। ठीक। जी। जी शेख साहब, ये शेख। जी, इसके अहकाम क्या हैं? मफूल लहू के कुछ अहकाम भी हैं। जी, मफूल लहू के अहकाम ये कि मफूल लहू जो है वो गैर मुजाफ और गैर मुरफ बिल नाम हो तो अक्सर मंसूब पढ़ा जाता है। ठीक है। जैसे वक़फ़ वक़फ़ तू लिल मुअल्लमी
इजलाला, लिलमुअल्लिमी, मुअल्लिम। लिलमुअल्लिमी इजलालन। ठीक है। और जब मफूल लहू मुअर्रफ बिल लाम हो तो औला होता है कि उसे हरफ जर के साथ मजरूर पढ़ा जाए। जी। जैसे हजर तू ले इत्मी नानी अलैका, लिल इत्मिनानी। हजर तू लिल इत्मी नानी अलैका। ठीक है। और तीसरा इसके लिए हुक्म है कि जब मफूल लहू मजाफ हो तो उसे मंसूब या मजरूर बहरफ तालील दोनों तरह पढ़ सकते हैं। ठीक है। जैसे इसकी मतलब जो ना मिसालें, ला रअयतुहु खाशियन मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। जी। जैसे चलें ठीक है, माशाल्लाह। जी आगे, हमना जिया आप बताइए, मफूल माहू किसको कहते मफूल हैं, इसकी माह तारीफ कर दें। मफूल माह वो इसम मंसूब है जो ऐसी वाव के बाद आए बाद आए जो माँ के हुक्म में हो, और उस जात पर दलालत करे जिसकी मुसाबहत में काम हुआ हो। जैसे जा अल अमीर वल जईशा, इसमें जो वाह है वो जो है माहू के हुक्म में है। चलें ठीक है जी। वल मोटा जई नईम आप बताइए, मफूल माहू के क्या अहकाम है। जी सर, इसके अहकाम ये है कि इसमें जो हमने वाव कही, उसका वाव जो है, अगर वो उसका जो उसका माबद है, माकबल के हुक्म में शरीक ना हो सकता हो तो उस पर नस्ब पढ़ना वाजिब होती है। जी। और अगर वो जो शरीक हो सकता हो तो उसको मफूल माहू की वजह से जो है मंसूब पढ़ना जो है, और मतूफ पढ़ना, दोनों तरीके से जो है वो उसका मतलब उसको हम नस्ब भी दे सकते हैं, और मातूफ होने की वजह से पहले ये जो उसका वर्ड है उसका इराब देना, दोनों तरह से जायज होता है। ठीक है। और इसी तरह से जो है अ, अगर वो सिर्फ अतफ के लिए हो तो। अतफ के लिए हो तो उस पे उसके बाद पर जो है ना वो नस्ब पढ़ना जायज नहीं होता। सही। हाँ जी। हाँ। और इसी तरह एक से जो बाकी है है, इनको, मफूल माहू को इसके जी जी, आमिल पर मुकद्दम उस आमिर करना पर मुकद्दम करना जायज नहीं होता। जायज नहीं है। जी। चलें ठीक है, माशाल्लाह। जी आयशा इमरान, आपने कुछ रिवाइज किया हुआ है या नहीं। नहीं सर, मैंने नहीं किया हुआ। हाँ चलें, आप तैयारी कर लीजिएगा क्योंकि फाइनल टर्म जो है वो बिल्कुल करीब है। ये आज हमारा जी सर। ग्रामर का लास्ट पीरियड था। जी सर। चलें जी। जी आगे, हमना जिया आप बताइए, हाल, हाल की क्या तारीफ है, किसको कहते हैं। हाल वो सीगा सिफ्त है जो मंसूब होता है, और ये फेल के वकू के माकबल उसके जो मफूल फाइल या इन दोनों को या इसम की हालत या हैयत को की वजाहत करता है, और जिस चीज की ये वजाहत करता है उसे जुल्हाल कहते ठीक है। हैं। ये फाइल और मफूल बिही के अलावा और किन किन चीज़ों की हालत को बयान करता है। ये मुब्तदा खबर और मफूल और नायब मफूल, नाइब फाइल। नायब नाइब फाइल फाइल फाइल, और मफूल मुतलक, मफूल फी, मफूल मफूल लहू लहू मफूल माहू, और और इन मजरूर। इन सब की इन इन सब की सारी तरह। इन सब की। चलें ठीक है, माशाल्लाह। जी आगे, डॉक्टर फैसल मजीद साहब आप बताइए, हाल की तीन सूरतें हैं, कौन कौन सी हैं। जी शेख साहब, हाल की जो तीन सूरतें इसकी हो सकती हैं, मुफरद होती है, जी। जुमला और शिबा जुमला जी। ठीक है। ये होती हैं। मुफरत कैसे हैं। मुफरद होता है, यानी कि जब ये मतलब है ना जुमला या शिबे जुमला ना हो तो तब ये मुफरद होता है। ठीक है। और जब जुमला बन जाता है फिर मुफरद खत्म हो अगर जाता ये है। मुफरद हो तो इसका हुक्म क्या है। जब ये मुफरद हो तो फिर इसका हुक्म होता है कि हाल मुफरद के अंदर अदद और तज़कीर व तनीस में जुल हाल के मुताबिक होता है जी। जैसे ठीक है। रही तो हामिदन राकिबन। चाहिए। जी। और अगर और जुमला हो। जुमला, जी शेख साहब, जुमला जुमला के लिए मतलब है ना हाल जुमला इस्मिया या फेलिया हो जी। तो इसका मतलब जो हुक्म है इसका, हाल जुमला हो तो इसमें राबित का होना जरूरी होता है जो इस जुमले का तल्लुक जुल हाल से जोड़े। तो ये मतलब इसकी आगे फिर मतलब जो है ना तीन तरह के हो सकते हैं, इसके तीन राबित हो सकते हैं। जैसे वाओ, वाओ दिया गया है कि जिसकी इन्होंने मिसाल मतलब जो है ना दी है, वलम मा यालमिल्लाहु। या अलामिल्लाह।
अच्छा, एक यालमिल्लाहु। राबित ये है और दूसरा राबित। और इसमें दूसरा जो है ना वो राबित है कि जी जमीर है जी दूसरा राबित इसमें। जैसे सुम्मा जाऊ का यहलिफून बिल्लाहि। और तीसरा। और तीसरा इसमें जो है वो वाव और जमीर दोनों हो सकते हैं। सही। जैसे इसका मतलब है ला तकरबुस सलाता व अंतुम सुकारा। फुकारा। सुकारा। तो हाँ, इसमें जुमला हालिया व अंतुम सुकारा जुमला हालिया है। और वाव और अंतुम जमीर और राबित हैं। ठीक है। और तीसरी, तीसरी सूरत। तीनों शेख जुमला। साहब बता दिए, वाव जमीर भी और वाव और जमीर दोनों इकट्ठे भी। हाँ, ये जुमले के तीनों राबित है ना। तो अब जी शिबा जी जी जुमला। जी। शिबा जुमला क्या होता है? इसमें ये नहीं शेख साहब ज़हन में आ आपकी आवाज नहीं आ रही है। रहा। शेख साहब ये नहीं ज़हन में आ रहा इसका। चले आप बताएं, जुमले में जुल्हाल और हाल का मकाम क्या है? जुमले में जुल्हाल और हाल का मकाम क्या है? हाल कहाँ होता है, जुल्हाल कहाँ होता है? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी शेख साहब बीच में मतलब जो है ना वो हो गई थी, मुनक़ते हो गई थी। हाँ। जुमले में जुल हाल और हाल कहाँ पे वाक़या होता है? जी जी। जुमले में अमूमन पहले आमिल फिर जुल हाल। हम्म। और उसके बाद हाल को जिक्र किया जाता है। सही। और कभी कभी हाल और जुल हाल से मुकद्दम भी हो जाता है। जैसे। जैसे जा राकिबन सईदुन। चले ठीक है, माशाल्लाह जी। मुना नईम, आप बताइए जुल्हाल और हाल के अहकाम। जी सर। सर हाल जो होता है मोस्टली वो नकरा होता है और अमूमन ये जुल्हाल के बाद आता है। ठीक है। और अगर कोई मतलब ऐसे जुमला है जिसमें पहले मारफा जो है वो हाल पहले मारफा हो, तो फिर जो उसके बाद जुल्हाल आता है उसको मतलब नकरा ही इस्तेमाल होता है। ठीक है। और इसी तरह से जो है ये जो जुल्हाल होता है वो अक्सर मारफा और नकरा मखसूसा दोनों तरह इस्तेमाल होता है। सॉरी मतलब दोनों कंडीशन में, मतलब कभी मारफा इस्तेमाल होगा या फिर वो हाँ, अक्सर नकरा मारफा भी जो है। होता है, कभी कभार नकरा मखसूसा होता है। जी 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 सर। और जो अ, सर इसमें हाँ ये भी था कि जो हाल होता है वो इसम मुश्तक होता है हमेशा, तो कभी कभार जो है इसम जामिद भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और कई ये भी है कि और रजूल हाल के जो है बाज़ बहुत सारे जो हैं वो हाल भी होते हैं, जी एक से ज्यादा भी होते हैं। जी। और यही थे मेरे ख्याल से। हाँ, चलें ठीक है, माशाल्लाह जी। आगे आप बताइए हमना जिया, हाल की अकसाम। हाल की चार अक़साम है। जी मुंतकिल हाल मुंतकिला। वो ये हाल अपने जुल हाल के लिए हमेशा साबित नहीं रहता। जैसे जा जईदुन राकिबन। और हाले साबिता जो अपने हाल के लिए वो हाल जो जुल हाल के लिए हमेशा साबित रहे। जी जुल हाल अपने हाल के लिए हमेशा साबित रहे, जैसे शाहिद अल्लाहु अन्नाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। और हाले मोकदा। अम, वो वो हाल जो आमिल के मायने और मजमून में ताकीद के लिए इस्तेमाल हो, जैसे अरसलना का लिन्नासी रसूलन। और हाले मुअस्ससा। वो हाल जो तोजी के लिए आए और ये नया मायने दे, जिसके बगैर वो जो जो वो नया मायने जो फायदा दे। और ये जो है वा खुलिकल इंसान ज़ईफ़न। ये हाल जो ज्यादातर ये वाला हाल जो है वो इस्तेमाल होता है हाल मुअस्ससा। चलें ठीक है, माशाल्लाह बारकल्लाहु फी। जी आयशा इमरान। सर मेरी प्रेजेंटेशन थी, मैंने आपको मैसेज हाँ, किया था। चलें जी, आज हम इसी पर इक्तिफा करते हैं। पीछे तमीज़ और मुस्तस्ना जो है वो हम नहीं सुन सके, लेकिन उम्मीद है कि माशाल्लाह जिन्होंने याद किया होगा। तो कल तो तजवीद और हिफ्स का हमारा लेक्चर होगा, और उसके बाद फिर आगे फाइनल टर्म इंशाल्लाह हो जाएगा। तो सब लोग सर मेहनत इसमें और जो कोशिश अदद करें।
جی جو اس میں اعداد جو ہم نے پڑھے ہیں یہ سارے تمیز کے انڈر آتے ہیں؟ جی جی، یہ سب تمیز کی ضمن میں آتے ہیں. جو عدد ہوتا ہے، معدود ہوتا ہے، اس کو تمیز جی بھی جی کہتے ہیں، اس کے دونوں نام ہیں. جی سر. ہاں. جی ٹھیک ہے. تو بس چلیں ٹھیک سیم ہے، ہے. ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک، اللہم مزید فزید. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.